Hello my friends, you are most welcome on BKIS Academy. This is Sujit Yadav. I will teach all of you English very well. I will give every necessary information, knowledge to all of you, and which is very compulsory to make your future better. So I want to make you understand that this is the platform that can provide knowledge, good matter to all of you. So my dear friend, come very soon and join this platform. Yes, and help this platform and love this platform. I think God has given everyone wit. You know that God has also sent us here. Why? Do you know? First we have to know that it's our responsibility, that we know our responsibility, our future and our work. So first it's your work to get knowledge. Yes, if you will get knowledge, then knowledge can make your life better and super. है ना? So for this you have to come with me and you have to love this channel. And you know that कि our parents, how great they are. Yes, they send us here to read. They send us here to make our future better. If we will not think about the future of our, then how can the future of our family will be better? Isn't it? Na? So my dear friend, come on and join me. Then it will become good performance and it will come a great revolution. And I want to bring a revolution in this field. So my dear friend, you have to join me and help me and love me. Yes, so आज I think also that and you have to teach bilingual. It means आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाया जाएगा. अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा तो आपको हिंदी में बताया जाएगा. अगर हिंदी में नहीं समझ में आएगा ना तो आपको इंग्लिश में भी बताया जाएगा, है ना. बस आप लोग प्यार बनाए रखिए और आप लोग हमेशा इसके साथ जुड़े रहिए और जुड़िए, फटाफट जुड़िए. आइए ले चलते हैं हम आप लोगों को हम इंग्लिश के शुरुआती प्लेटफॉर्म पर. चलिए पहले हम जानते हैं, जो सभी लोग जानते हैं इंग्लिश. व्हाट इज इंग्लिश, है ना. तो इंग्लिश यू नो दैट जो अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं, यही ना, भाई अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं. तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. So we know that कि what is a language? कि language is a medium of communication by which we understand each other's feeling, each other thoughts, है ना. तो language जो आपका है, जो आपका ये language LANGUAGE है ना. ठीक, लैंग्वेज में क्या आता है आपका? हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, चाइनीज़ हो गया, है ना. इसके बाद आपका जो है रसिया हो गया, है ना. संस्कृत हो गया, यस संस्कृत हो गया. ETC क्या है? ये सारी क्या है? लैंग्वेज है ना. तो इसमें कुछ लैंग्वेज होते हैं जो भारत में बोली जाती हैं. And which language is spoken in the native country? It is called national language, है ना. And English, it is an international language. Why? Do you know? If you know, then tell me. No matter. Come on with me. I will tell you that. Yes, English, it is an international language. Why? Because it is spoken not only in our country but also in other country, है ना. Like Japan, America, Britain, Australia, Canada, yes, everywhere. So also we say this language a global language, also a lingua franca, है ना. So this is, so that is why we said English is an international language. प्रश्न उठता है कि why we learn this? हम क्यों सीखें भाई? We have to learn this language because it is the necessary of modern era to get the information of truth. आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप मेडिकल में चले जाइए,
आप स्पेस में चले जाइए, आप IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, कौन ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इंग्लिश की डिमांड नहीं है बताइए। इफ़ यू हैव नो नॉलेज ऑफ गुड इंग्लिश ना, you cannot make your life better and super. So my dear friend, you have to come and you have to join with me for better information, for better knowledge of English. Yes, because we know that. Why? Also we have to know that what should be and what I have to do. Then our life will be super and very beautiful. तो मैं आपको दिस इज लैंग्वेज। सो आई थिंक दैट कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज इसको पढ़ने के लिए हमको लेटर की जरूरत पड़ती है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज हमने समझा, एक होती हिंदी होती है ना। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, हिंदी हो गई, ये आपकी इंग्लिश हो गई है ना। ठीक, ये दोनों क्या है? ये हिंदी लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। हिंदी में हम जानते हैं कितने 52 क्या होते हैं? 52 लेटर्स होते हैं है ना। ठीक, और इसमें से जो है कितने, इसमें से कि आपके 41 क्या होते हैं? 41 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट है ना। और जो है आपके 11 है ना, 11 भी आते हैं और कहीं कहीं 13 भी होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं वावेल्स। क्या कहते हैं? वावेल्स है ना। तो उसी प्रकार से जो इंग्लिश की बात हम जब करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज की 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, होते हैं ना। और इसमें से जो है ये 21 क्या होते हैं? 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और बचे 5 जो होते हैं इनको हम कहते हैं वावेल्स। क्या कहते हैं? वावेल्स कहते हैं ना। अब प्रश्न ये उठता है, भाई कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? और प्रश्न ये उठता है कि वावेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है हिंदी में व्यंजन। क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यंजन। और इसका अर्थ क्या होता है वावेल्स का? इसका अर्थ होता है स्वर होता है, ये होता है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है, लेटर किसे कहते हैं भाई? तो लेटर उसे कहा जाता है, लेटर इज ठीक अ सिंबल एंड आल्सो इट हैज ए साउंड। ठीक, जैसे क, देखिए इसमें साउंड आ रहा है, ख साउंड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है। ये तो हिंदी वाले अक्षर हो गए। अंग्रेजी वाले अक्षर की तरफ चलिए, उसमें हमने कहा ए है ना, देखिए साउंड आ रहा है। ये क्या है? एक सिंबल भी तो है, बी, जेड, एल है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हैं आपके अक्षर। अक्षरों का एक सिंबल होता है और एक साउंड होता है। बात आई समझ में? थैंक यू वेरी मच। आइए, अब हमने पढ़ लिया, अक्षर पढ़ लिया ना। जब अक्षर हमने पढ़ लिया तो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अक्षर के बाद क्या आता है। अक्षर के बाद हम लोग जानते हैं पढ़ने के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा वर्ड। क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक, वर्ड पढ़ना पड़ेगा है ना। तो वर्ड क्या होता है बताइए? कोई बात नहीं है, ठीक, हम है ना। आइए हमारे साथ, चलिए। वर्ड है ना, वर्ड को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं शब्द। तो पहले हम ये जानते हैं कि शब्द हिंदी में किसे कहते हैं। तो शब्द वो होता है, या हम ऐसे कहें कि एक अक्षर या कई अक्षरों का समूह जिसका एक क्लियर मीनिंग निकलता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। बात आई समझ में कि फिर बताना पड़ेगा? चलिए फिर सुन लीजिए। एक अक्षर या कई अक्षरों का समूह जिसका एक क्लियर मीनिंग निकलता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। जैसे क्या है? ये क्या लिखा गया है? ये में है ना। ये क्या लिखा गया है? ये आपका के है कि नहीं है? बताइए, है ना। हाँ, ये क्या लिखा गया है? से है। ठीक, ये तो आपके भाई एक ही तो अक्षर है कि नहीं है?
और कह दिया, हमने कह दिया, क्या कह दिया, राम, क्या कह दिया, राम, है ना। हमने कह दिया जो है, ठीक है, कह दिया भगवान, कह दिया, क्या कह दिया, भगवान कह दिया। हमने कह दिया जो है माता, क्या कह दिया, माता कह दिया, है ना। हमने कह दिया पिता कह दिया, ठीक है। ये सब हिंदी के क्या हैं, ये सब शब्द हैं। जैसे पिता, अब देखिए पिता में क्या है, ये एक अक्षर है, एक अक्षर ये है, दो अक्षर से मिलकर बना है, पिता बना है ना। ये भ है, ये ग है, वाह है, न है, तो 1 2 3 4, ये 4 अक्षर से मिलकर के जो है एक शब्द बना है, ठीक। ये आप तो हिंदी में समझ लिए। अब आइए अंग्रेजी में हम समझते हैं। अंग्रेजी में वर्ड किसे कहते हैं, सुनिए डिफिनीशन। अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ मीनिंग। फिर सुनिए, अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। जैसे जैसे हमने कह दिया, क्या कह दिया, ए, ठीक है। हमने कह दिया जो है आई, ठीक है। हमने कह दिया एन, हमने कह दिया जो है GOD, हमने कह दिया जो है SKY, हमने कह दिया फादर, फादर। तो ये सब क्या हैं, ये सब शब्द हैं। ए माने क्या होता है आप जानते हैं, एक होता है, वेरी गुड। आई माने क्या होता है, मैं होता है, बहुत अच्छा, ठीक। एन माने क्या होता है, एक होता है, वेरी गुड। गॉड माने क्या होता है, आप जानते हैं ना, क्या होता है, ईश्वर होता है, क्या होता है, ईश्वर होता है, गॉड, है ना। स्काई माने क्या होता है, स्काई मीन्स आकाश होता है ना। और फादर माने क्या होता है, फादर माने होता है पिता, ठीक है, जो हमारे पापा हैं, है ना, इनको हम कहते हैं फादर। तो ये आपके जो वर्ड हैं, क्या ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आएगा, बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए जो है, और प्यार बनाए रखिए, है ना। आपको हर चीज़ क्लियर किया जाएगा, बस आप लोग जुड़िए, है ना। तो यहाँ पे मतलब हमने वर्ड पढ़ा, और वर्ड के बाद आता क्या आता है, इसके बाद हम सेंटेंस, क्या आता है, सेंटेंस आता है, क्या आता है, सेंटेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस, क्या हो जाएगा, सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस। अब बात आती सेंटेंस क्या होता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वाक्य कहते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य एक शब्द या कई शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, क्या, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। बात आई समझ में, नहीं आई? अरे देखिए भाई, ये तो बताया जा रहा है कि वाक्य वो होता है जो एक शब्द या कई शब्दों से मिलकर बनता है, और जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हमने कहा राम मेरा दोस्त है ना। हमने कह दिया आप क्यों नहीं, वह खाना, ठीक है, पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हम इन सभी को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है हिंदी वाली, ये तो हिंदी की हो गई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इसके डिफिनेशन हम कैसे देंगे, तो सेंटेंस की जो इंग्लिश में डिफिनेशन ये होती है कि अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जो है, अब सेंटेंस हो गया। अब एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। हमने कह दिया सी इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यस। हमने कह दिया कि माई फादर इज नॉट देयर। हमने कह दिया कि हाउ
हाउ जेंटलमैन यू आर। हमने कहा हु हैज चीटेड यू, हु हैज चीटेड यू, है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस। ये क्या है, ये जो है सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। बात आई समझ में। तो ये हमने पढ़ा, वर्ड पढ़ा, सेंटेंस पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जो है सेंटेंस के जो काइंड्स हैं उनको पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको जो मैंने पढ़ाया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जो है नीचे लिखिए कि सर नेवर फियर माय डियर स्टूडेंट, इफ यू विल फियर ना, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू गेट क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग बेटर, है ना। आप क्यों डरते हैं, डरिए नहीं, आप मेरे साथ आइए, जुड़िए और मुझे लाइक करिए, है ना। इसके बाद फिर देखिए मैं इंग्लिश के क्षेत्र में क्रांति ला दूंगा है ना। बस आप लोग प्यार बनाए रखिए, है ना। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने आपको आज पढ़ाया इंग्लिश लैंग्वेज किसे कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं और उसमें मतलब कॉन्सोनेंट और वावेल क्या होता है। फिर मैंने आपको वर्ड्स बताया, है ना, वर्ड की डिफिनीशन बताई और वर्ड के एग्जाम्पल भी बताया। और इसके साथ ही मैं अगले पॉइंट पर मैंने आपको क्या बताया, आपको सेंटेंस बताया और सेंटेंस के आपके डिफिनीशन बताया और एग्जाम्पल भी बताया। बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने समझाया और इसी प्रकार जो है मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा जो है कि सारा डाउट क्लियर होगा, है ना। बस आप लोग प्यार बनाए रखिए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स and my dear brother and sister, come on and join this channel and love this channel, and thank you very much.